دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. اپنی اپنی عبادت کی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دعائے مالک تھوڑا سب دا بارگاہ سٹور آیا اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے. سوائے غم آل محمد دے کریم اللہ کوئی غم نہ دیوے. صدا ہو ویڑے او جائیں او ذکر آلیاں جگہیں او دل آباد رہن جتے ذکر محمد و آل محمد وسطائے. اور ممبر دے توسل دعا ہے یا رب آل محمد بانیان دا فرش عذاب بچھایا مومنین دا ٹورایا لنگر و نیاز و ڈیوٹی دیونا لے عزادار کریم اللہ سب عزت رسمت اضافہ فرما. اور خصوصاً بانیان فرش عذار اور زمان علی قاسم اور جتنے بھی دوسرے عزادار ساتھ دیون والے یا رب آل محمد سب کی پریشانیاں دور فرما. اور ممبر دے توسل دعا ہے یا رب آل محمد مدثر بھائی دے عزت رسمت اضافہ فرما. جو مشکلات انہوں درپیش ہیں دور فرما. بڑی دعا میں چاہنا سارے مل کے آمین آکھے. یا رب آل محمد واسطے 55-14 دا واسطے 72 تن شہداء کربلا دی عظمت دا یا رب آل محمد ساڑھے پردے والے حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما. دعاؤں دی قبولیت واسطے سارے مل کے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. حاضری میں نے شروع کر دی یہ شدی 4 محرم کی مجلس ہے. یہ توجہ چاہیے بھئی آپ یادار تک 4 محرم کا یہ پرسہ اور انشاءاللہ تعالی یہ پرسہ داری اس سال کی عشرہ محرم الحرام کی 12 محرم تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. دل ہے 2 جملے آپ کو فضائل آل محمد کے سناؤں. اس کے بعد اس طرح سب کو معلوم ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا یہ پرسہ ہے. اگر آپ کی طبیعت ساتھ دے رات کی تھکن کو ہٹا کر میرا ساتھ دیں اپنے ذہنوں کو میرے لفظوں کے ساتھ معین کریں شجی تو طبیعت ساتھ دے تو اجازت ہے 2 جملے فضائل آل محمد کے سناؤ. مسجد نبوی لوگ موجود اور بھرا ہوا مسجد نبوی کا سے توجہ بھائی. اب ممبر پہ تشریف فرما رحمت للعالمین کہ اچانک دروازے پر ایک بندہ آیا. توجہ بھائی. السلام علیکم یا رسول اللہ. علیکم السلام. یا رسول اللہ ایک بات کرنی ہے اور سب کے سامنے کرنی ہے. بتاؤ کیا بات ہے. یا رحمت اللہ عالمین آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم نے مانا اللہ ایک ہے. آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روز رکھو ہم نے رکھے. آپ نے کہا شراب چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دی. آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دیا. تاکہ چھوڑا نہیں تھا بول رہا تھا. توجہ بھائی. یا رسول اللہ آپ نے ساری باتیں کہیں ہم نے آپ کی ساری باتیں مانی. آپ نے کہا دین اسلام یہ ہے اس کے مطابق یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. ہم باز آ گئے. لیکن رسول اللہ میں ایک گناہ کی اجازت چاہتا ہوں. توجہ بھائی. شاید آپ لوگوں تک یہ بات نہ پہنچی ہو کیونکہ میرے علم میں بھی آج یہ بات آئی اور میرا دل تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں. اور ممبر سے یہ بات اگر آپ کے دل تک میں پہنچا سکا میں بیان کر سکا شاید جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تو لطف آئے گا آپ کو بات کا. رسول خدا کے چہرے پہ جلال آیا. اب جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے چہرے پر بھی جلال آیا. کوئی مارنے کو کھڑا ہوا کوئی اسے فنار کرنے کو کھڑا ہوا. صحابہ کو پیار تھا نا رسول اللہ سے. رسول اللہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہا رک جاؤ اب اس کی بات پوری تو ہو لینے دو. وہ قوم سے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے کیونکہ یہ ہے رحمت للعالمین. اسی کا نام ہے رحمت للعالمین. جو کل کائنات کے لیے رحمت ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ زادارو. اب اس نے بات مکمل کی. اب گناہ ممبر سے میں بیان نہیں کر سکتا. اس نے کہا مولا اس گناہ کی اجازت دے دو. مولا نے کہا اگر تو اس گناہ کی اجازت چاہتا ہے تو یہ بتا اگر تجھے اس گناہ کی اجازت دے دوں تو دوسروں کی عصمت دری تو کرے گا لیکن اگر دوسروں کو اجازت دے دی تو وہ تیری عصمت دری
دری کریں گے. اگر تجھے یہ قبول ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں. توجہ بھائی, بندے نے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور رو کر کہنے لگا نہیں مولا یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میری عصمت دری ہو, اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس گناہ سے باز آ جاؤں گا, بلکہ کروں گا نہیں, میں نتیجہ دینے لگا ہوں. اب رسول اللہ نے بندے کی طرف دیکھا, جب آیا تو وہ منافق تھا, جب نکلا مسجد نبوی سے تو وہ مومن تھا. وہ مومن تھا. رحمت للعالمین نے اس بندے کو تھوڑی دیر پاس بٹھایا اور منافق سے مومن بنا دیا. میں کہتا ہوں قسمت ان کی جو کافی عرصہ سالوں تک پاس بیٹھے رہے لیکن رحمت للعالمین کو آباد رہو. تو رحمت للعالمین کا شدید معیار سمجھنا, فضیلت سمجھنا, محمد مصطفیٰ کی شان رسالت بیان کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, آپ کا ساتھ چاہیے, بس آخری جملہ اور مصائب کی ڈیوٹی شروع کرنے لگا ہوں. بھائی رؤف اور بھائی قاسم اور آخری ازادار تک شان رسالت کو سمجھنا تو دور کی بات ہے, شان رسالت اور شان نور مصطفیٰ کو دیکھ پانا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں یوں کہوں کیوں نہ کہوں, اور میں یہ غلط نہیں کہہ رہا, علم عباس کی قسم ہے, اگر کوئی کل کائنات میں شان رسالت سمجھا ہے تو وہ تیرا اور میرا مولا علی المرتضیٰ ہے. تو شان رسالت کا وہی وارث ہے, رسالت کا نہیں وہی وارث ہے جو رسالت کو سمجھے. کیوں رسالت کا وارث صرف علی اور آل علی ہے؟ اس لیے کہ جہاں جہاں بھی رسالت کو مشکل پڑی, میں یوں کیوں نہ کہوں, جہاں جہاں دین مصطفیٰ کو مشکل پڑی, اگر کام آیا تو علی یا اولاد علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, بآواز بلند تر صلوات. بس سزادارو, اگر امت مصطفیٰ کو سمجھ جاتی, رسول کی بیٹیاں شام نہ جاتی. میں نے شروع کر دیا یہاں پر, کل میں نے ذکر چھوڑا تھا, دل ہے وہیں سے شروع کروں. مدینے سے شریف جب قافلہ تیار ہو کے بادشاہ حسین کا نکلا ہے نا, تو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی چند قدم خرم شریف مسافت پر قافلہ حسین گیا تھا کہ بادشاہ حسین نے مولا عباس کو حکم دیا, عباس یہاں پر تھوڑی دیر قافلے کو روکو. مولا کوئی چیز رہ گئی ہے گھر میں؟ نہیں عباس, چیز نہیں رہ گئی, قافلہ روکو. مولا عباس نے حکم دیا, قافلے کو روکا گیا. بادشاہ حسین جلدی سے اپنے گھر گئے. اب بند دروازے دیکھے, 40 بند دروازے دیکھے, دروازوں پر نگاہ دوڑائی, پھر ہاشمیوں کی پوری حویلی پر نگاہ دوڑائی, پھر واپس آئے. مختصر کرو شریف 7 دفعہ بادشاہ حسین اس مقام سے واپس اپنے گھر گئے. جب 6 دفعہ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو روتے ہوئے واپس آئے, لیکن جب 7ویں دفعہ مولا واپس آئے ہیں نا تو دستار کھل چکی تھی اور گلے میں آ چکی تھی, ریش میں ریت لگی ہوئی تھی اور ننھے بچوں کی طرح حسین چیخ چیخ کر رو رہا تھا. اب مولا عباس نے پوچھا مولا 6 دفعہ آپ گئے لیکن آپ کی حالت یہ نہیں تھی, آپ کیا دیکھ کے آئے ہیں؟ تو روئے مولا حسین, یار آپ کا کوئی پتھر کا جگر تو نہیں؟ مولا حسین روئے اور رو کر کہنے لگے, عباس میں ابھی جو دیکھ کے آیا ہوں, اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. میں نے دیکھا ہے 40 بند دروازے ہیں, سغرا اکیلی دروازوں پر بیٹھی ہے, کبھی اس دروازے پر جاتی ہے کبھی اس دروازے پر جاتی ہے, اور جو میں نے آخر میں دیکھا ہے سغرا اپنا ماتھا دیواروں پر لگا رہی ہے, اور جب ماتھا اٹھاتی ہے دیوار سرخ ہو جاتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے, بابا مجھے اکیلا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. الحمدللہ. مولا اگر ایسے چلنا ہے تو سفر معطل کر دیتے ہیں. نہیں غازی, میرا مشن اور ہے, میں اپنے نانے کے دین پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا مولا
मौला इजाजत है काफिला लेके चलो। अब मौला अब्बास ने काफिला लेके चलना शुरू किया। बस अज़ादर मक्के में पहुंचना था बादशाह का, और काफी अरसा कयाम के बाद जब हज नहीं किया आले मोहम्मद ने, मैं जुमला बदलूं जो समझ नहीं सके, हज आले मोहम्मद ने किया नहीं बल्कि उम्मतियों ने करने नहीं दिया। जब हुक्म मिला ना मौला अब्बास को कि अब्बास हज को उम्रे में बदलो, नाने की उम्मत हज नहीं करने देती, तो मौला शहनशाह वफा मौला हुसैन के कदमों में बैठ गए। अब मंजर आपने बनाना होते जुमले ही हैं, और होकर कहने लगे मौला अब्बास भी जिंदा हो और आपको लोग हज न करने दें, एक दफा इजाजत दो, मौला जितने आपके दुश्मन हैं एक हमले में मार के और आपके वापस आऊंगा। नहीं गाजी, ये मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं है, मेरे अल्लाह की मर्जी है कि मैं हज को उम्रे में बदलूं और यहाँ से चलूं। अब जी मक्के से कुछ दूर मुसाफत पर जंगल में खयाम को लगाया गया। पाक बीबी आलिया के पास मौला हुसैन बादशाह आए और कहने लगे कि मेरी माँ के जाने के बाद ज़ैनब तुमने माँ की तरह मुझे पाला है, जितना प्यार मुझे अम्मा ज़हरा से था इतना प्यार तुमसे है। ज़ैनब अगर मैं माँ समझ के तुमसे कुछ मशवरा मांगो मुझे दोगी? अब बीबी रोई और रोकर कहने लगी भाई हुसैन अब कौन सी मुश्किल बन गई है? रोए हुसैन और रोकर कहने लगे ज़ैनब मेरे साथ 4 अली हैं, एक सज्जाद है, एक गाजी है, एक हनफिया है, एक मुस्लिम बिन अकील है। ज़ैनब अगर 4 अली मेरे साथ रहे मेरा मुकम्मल मिशन नहीं होगा, ये तलवार मेरे गले पर नहीं आने देंगे, और जब तक मैं अपना खून करबला में नहीं दूंगा करबला मुअल्ला नहीं बनेगी। अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा हुसैन तो फिर क्या चाहता है? ज़ैनब 2 अली अपने ज़िम्मे ले, 2 अली मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। ठीक है भाई हुसैन, कौन कौन से अली अपने ज़िम्मे लेते हो? ज़ैनब मुस्लिम बिन अकील और हनफिया मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, गाजी और सज्जाद जाने तू जाने। अब ज़्यादा सुनना जुमले। अच्छा भाई हुसैन तो करोगे क्या? अब रोई पाक बीबी और रोकर कहने लगी मौला हुसैन कहने लगे मैं हनफिया को मदीने भेजता हूँ। मैं जब से मदीने में सुगरा को अकेला छोड़ के आया हूँ, सुगरा बहन कर रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं हनफिया को मदीने भेजता हूँ, मैं मुस्लिम बिन अकील को कूफे सफीर बना के भेजता हूँ। अब रह गए सज्जाद और गाजी। अभी नाम ले ही रहे थे कि पाक बीबी बोली वीर हुसैन अब ज़ैनब के जिम्मे गाजी और सज्जाद लगा दो, गाजी करबला में चुप करके सो जाएगा और शाम जाने और सज्जाद जाने। अल्हम्दुलिल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। मंजिल दूर है, बस दुआ है कि हर आंख की इबादत हो। बस रज़ादारो। अब जनाब हनफिया को मौला हुसैन ने हुक्म दिया, हनफिया जी आका तुमने मदीने जाना सुगरा के लिए और नाने की कब्र के लिए, माँ की कब्र के लिए, तुम मदीने जाओ। अच्छा मौला अगले जुमले शरीफ बड़े दर्द भरे जुमले। अब जनाब हनफिया रात का वक्त था, मगरिब बैन अदा करने के बाद का ये वक्त था। मौला हुसैन के कदमों पर हाथ रखे और होकर कहने लगे मौला अगर रात का ये वक्त मुझे यहाँ पर गुजारने दें तो मुझे इतना वक्त मिल जाएगा कि मैं महमल तैयार कर लेता हूँ। जब महमल का नाम आया ना, सवारियों का नाम आया ना, तो मौला हुसैन ने पूछा हनफिया मैंने तुझे कहा है मदीने जा, तू महमल और सवारियां किनके लिए तैयार कर रहा है? अब रोए हनफिया और रोकर कहने लगे मौला ये हनफिया की गैरत गवारा नहीं करती, हनफिया मदीने जाए और अली की बेटियां जंगल करबला में जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हनफिया, ये हुक्म इलाही है कि मेरे साथ जब तक ज़ैनब नहीं जाएगी नाने का दीन मुकम्मल नहीं होगा। बस अज़ादारो मुख्तसर करूं, जनाब मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, कहा मुस्लिम जी आका कूफे से काफी खत आए, तुम मेरा सफीर बन के मेरा वकील बन के कूफे जाओ। अच्छा मौला अकेले जाना है? अब अगले जुमले सुना अज़ादारो, मौला अकेले जाना है? नहीं मुस्लिम अगर तेरा दिल करे वकील बन के जा रहे हो साथ में 2 गवाह ले जाओ।
अब जब गवाहों का नाम आया, अज़ादारो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपने हुजरे की तरफ चलना शुरू किया। अब जब हुजरे में दाखिल हुए तो चेहरे पर परेशानी का आलम था। अब गैस गाजी की बहन ने अपने वारिस के चेहरे पर परेशानी का आलम देखा और रोई और रोकर कहने लगी, जंगल में हम वैसे ही परेशान हैं मेरे वारिस, अब ये परेशानी का आलम क्या बता रहा है। अब रोए मुस्लिम बिन अकील और रोकर कहने लगे, गाजी की बहन, अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम आप भी कुर्बान हो जाए, मुस्लिम की जोड़ी भी कुर्बान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे वारिस को आप अगर हुसैन के मिशन पर आप और आप की औलाद को कुर्बान करने का मौका मिले, इससे बढ़कर बख्शिश क्या होगी, इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या होगी। अज़ादारो माँ ने बड़ी मुश्किल से बेटों को मनाया। तारीख से चलिए बात कर रहा हूँ, 6 बेटे थे जनाबे मुस्लिम बिन अकील के। अब हर बेटे ने जिद की है कि मैं बाबे के साथ जाऊं और मामे के मिशन पर कुर्बान हो जाऊं। अजमत देखो करबला की माओ की, अजमत देखो करबला के बच्चों की। 6 बच्चों ने शरीयत जिद की है। जब गुरा डाला तो मोहम्मद और इब्राहिम का गुरा निकला। अब मोहम्मद और इब्राहिम को माँ ने तैयार करना शुरू किया। अब मैंने जुमले देने हैं, आपने मंजर बनाना है। अल्लाह करे हर आंख इबादत करे। शादी बड़े बेटे ने तो चोला पहन लिया, अब छोटे बेटे को जब चोला पहनाने की बारी आई, अब पहले माँ पहनाती थी, आज माँ दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी और कहने लगी, मोहम्मद इब्राहिम को कहो आज चोला खुद पहने। अब इब्राहिम रोने लगा और रोकर कहने लगा, अम्मा पहले तो चोला तुम पहनाती थी, आज क्या मजबूरी बन गई है जो चोला मैं पहनूं। हत्ता कि अम्मा तुम जानती हो मुझे चोला पहनना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार किए शरीफ शहजादों को बीबी ने जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ लिया। अब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने तैयारी शुरू की कि बहने मोहम्मद और इब्राहिम के रास्ते में आ गई। कहने लगी, बाबा 15 दिन रह गए हैं छोटी ईद में, 15 दिन के बाद छोटी ईद है, आपका सफर लंबा है, कूफा दूर है, आप आ जा नहीं सकते। मुझे पता है बाबा आप छोटी ईद पर नहीं आ सकते, लेकिन बड़ी ईद पर तो आप आएंगे ना। बाबा आपको पता है जिनके भाई घरों से दूर हो उनको रात को नींद नहीं आती। अभी ये जुमले कह ही रही थी, यकीन करो मुस्लिम बिन अकील की बेटियां के पीछे से माँ की आवाज आई, वापस आ जाओ, जिस मिशन पर मुस्लिम और उसकी जोड़ी जा रही है वो ईद बनाने नहीं जा रहे, वो अपने खून से कूफा रखने जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। पसंदादारो जनाब मुस्लिम बिन अकील जब कूफे में आए हैं ना, तो बड़ी दावतों से नवाजा है जनाब मुस्लिम बिन अकील को। हर बंदे ने अपने घर का दरवाजा खोला और बुलाया अपने घर में। और जब ये मंजर से जी छोटे बेटों ने देखा ना जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कि हमारे बाबे की इतनी इज्जत हो रही है, कोई कहता है हमारे घर में आओ, कोई कहता है हमारे पास बैठो, कोई कहता है यहाँ आओ, तो उनका हौसला सीधी बुलंद होने लगा। मैं कहता हूँ अल्लाह करता वो दिन न चढ़ता जब सोने के लिए रात को जगह नहीं थी और मुस्लिम बिन अकील की जोड़ी गलियों में दर बदर हो रही थी। बस अब ये दिन जब मुस्लिम बिन अकील ने दावत हुसैन पर आने वाले लोगों को तबलीग रसूल की, अब आखिरी वो रात थी जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने नमाज पढ़ाई मगरिब में। जब नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए तो काफी लोग मौजूद थे। तारीख में ये फिक्र लिखी है शदीद, लेकिन जब जनाब नमाज से फारिग हुए तो जब मुड़ के देखा तो पीछे मोहम्मद और इब्राहिम रह गए थे और कोई नहीं था। अब मोहम्मद बाबा से मुखातिब हुआ और रोकर कहने लगा, बाबा वक्त बदल गया है, सारे छोड़ गए हैं, बाबा इस मुश्किल घड़ी में आप हो और हम आपके बेटे साथ हैं। अज़ादारों बेटों के ये जुमले कहने थे कि अब मस्जिद के बाहर से आवाजें आने लगी, सदाएं आने लगी कि मुस्लिम को ढूंढो, मुस्लिम बादशाह को जो ला के देगा, इसलिए इनको जो ला के देगा वो इनाम और इकराम से नवाजेगा। अज़ादारों ये मंजर था कि अब गली में अकेला बाप अपने 2 बेटों को लेके जा रहा था। अब अज़ादारों जैसे ही जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में गए, अब हर दरवाजे पे दस्तक दी। अब जो दरवाजे पहले खोल रहे थे और दावत दे रहे थे, आज हर दरवाजा मुस्लिम बिन अकील पे बंद हो रहा था, कोई भी मुस्लिम बिन अकील को पनाह नहीं दे रहा था। अज़ादारों के अचानक एक दरवाजे पर मुस्लिम बिन अकील ने दस्तक दी कि अंदर से एक बंदा निकला और मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मुझे पहचानो, मैं मुस्लिम हूँ, तुम्हारे खत्तों पर कूफे में आया हूँ, अगर मुझे पनाह नहीं देते तो ना दो, मैं जानू, मेरी किस्मत जाने, मेरे छोटे बच्चों को एक रात गुजारने दो।
मिली शजी जनाब मुस्लिम बिन अकील को और जोड़ी को। जब एक गली के आखिर पे पहुंचे तो वहां पर एक चबूतरा सा था। अब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी चादर के साथ रेत को कंकड़ को साफ किया। अब मंदिर बना हुआ ज़ादारों को पत्थर का जिगर तो नहीं आपका, वो तो लफ्ज़ हैं जो आप तक पहुंचाए जाते हैं। अब बिस्तर बनाया, बिस्तर बना के शजी मोहम्मद को पहले लिटाया और मोहम्मद को बोला मोहम्मद अपना बाजू खोलो। अब मोहम्मद ने अपना बाजू खोला, छोटे बेटे इब्राहिम को साथ लिटाया। अब इब्राहिम का सर मोहम्मद के बाजू पे रखा। मैं शादी पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तारीख में दो दफा मासूमीन ने अपनी औलाद के लिए नींद की दुआ मांगी है। एक 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन ने सकीना के लिए और दूसरा मुस्लिम बिन अकील ने कूफे में। अज़ादारों दुआ अभी खत्म नहीं हुई थी कि नींद गालिब आई। अब नींद का गालिब आना था। शादी मुस्लिम बिन अकील ने गली में चलना शुरू किया। अब मैं यहाँ पर यूं क्यों ना कहूँ, ऐसे कोई अपना सामान भी छोड़ के नहीं जाता जैसे मुस्लिम बिन अकील अपनी जोड़ी छोड़ के जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। तवा नामी एक औरत थी, उसके दरवाजे के साथ जनाब मुस्लिम बिन अकील बैठ गए और रो रहे थे। जनाब मुस्लिम बिन अकील के रोने की आवाज सुन के ये मानने वाली थी आले मोहम्मद की, तो तवा ने दरवाजा खोला तो कहा बंदा खुदा तुझे पता है कूफे के हालात ठीक नहीं है, तू अपने घर चला जा। तो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने चेहरा बुलंद किया और कहा तवा मुझे पहचान, मैं कोई और नहीं, मैं आले मोहम्मद में से हूँ, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। शादी जनाब मुस्लिम बिन अकील के ये जुमले कहने थे कि ये तवा रोई और रोकर कहने लगी यार मुझे समझ आया जब मैं मौला अमीर कायनात की बारगाह में जाती थी और उनको आने की दावत देती थी, वो कहते थे तवा मैं नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन मेरी औलाद में से एक वारिस आएगा और इतना बेकस्ब यारो मददगार होगा, कोई पनाह देने वाला नहीं होगा। तवा उस वक्त मेरे बेटे को घर में ले जाना और उसको पनाह देना। शरी अब तवा मुस्लिम बिन अकील को घर में ले गई और बिस्तर बनाया और मसनद सजाई। लेकिन जैसे ही मसनद सजाई अज़ादारो जनाब मुस्लिम बिन अकील मसनद पर नहीं सोए और रोकर कहने लगे तवा क्या तुझे पता नहीं हम आले मोहम्मद आखिरी रात सो कर नहीं गुजारते, इबादत में गुजारते हैं। मुझे एक मुसल्ला दो, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, मैं हुसैन के मिशन पर कुर्बान होने जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। दिन चढ़ा शरीफ ना चढ़ता अल्लाह करता ये दिन कि बार मारो मारो की सदाएं आई। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने ये सदा सुनी, तलवार को न्याम से निकाला। तवा ने रोका, कहा मत जाएं बाहर, आपके दुश्मन हैं और मेरे होते हुए मेरे घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता। रोए मौला रोकर कहने लगे नहीं मेरी मंजिल यहाँ तक है तवा, एक मिन्नत है मेरी। अब सुनो कि मिन्नत कौन सी जनाब मुस्लिम बिन अकील ने की। रोए और रोकर कहने लगे तवा मेरी एक मिन्नत है तुमसे, मैं जब से कूफे में आया हूँ मेरी औलाद मेरे साथ है, मेरे 2 छोटे बेटे मेरे साथ हैं, मोहम्मद और इब्राहिम मेरे साथ हैं। जब आए थे दोनों ने बाबा की इज्जत देखी थी, अब जब से वो गलियों में ख्वार हो रहे हैं, उनको सोने के लिए जगह नहीं मिली, उनको खाने के लिए नहीं मिला। तवा अगर मेरी औलाद मिले तो मेरी औलाद गाजी तक पहुंचा देना। अज़ादारों ये जुमले कह के जनाब मुस्लिम बिन अकील ने घर से निकलना शुरू किया। अब हुसैन के शेर ने ऐसा वार किया कि कमीनों को फिन्नार पे फिन्नार किया। अज़ादारों उधर मंजर क्या था, बस आखिरी जुमले शहादत के करीब आ गए। शादी उधर मंजर क्या था, अब मक्के के करीब, मक्के से दूर एक जंगल में खयाम लगा के हुसैन बैठा था। अब गाजी खयाम लगाने में मसरूफ हुआ कि अचानक से देखा क्या कि पाक ज़ैनब ऊंचा ऊंचा रोने लगी। अब गाजी ऐसे आया शादी जैसे कुएं के पास पानी आता है और कहने लगा गाजी भी जिंदा हो और अली की बेटी भी रोए, तुझे किसने रुलाया है। अब अली की बेटी रोकर कहने लगी गाजी तू खैमे लगाने में मसरूफ हो गया है, मेरा हुसैन नहीं मिल रहा, मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आबाद रहो। अच्छा आकाजादी मैं अभी मौला को ढूंढ के लाता हूँ। अज़ादारों भी खैमे से 4 कदम दूर जनाब गाजी गए थे कि अभी देखा क्या कि मौला हुसैन की दस्तार खुल के गले में आ गई थी और रेत पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई गरीब बैठता है और रो रहे थे और कह रहे थे ओ मजलूम मेरा सलाम, ओ अकेला मारे जाने वाला मेरा सलाम, ओ मेरा वकील मेरा सलाम। अज़ादारों ये जुमले सुनने थे कि गाजी पास आए और रोकर कहने लगी आका ये अकेले किसकी मजलूमियत पर रो रहे हो। अभी गाजी के ये जुमले कहने
कर कहने लगे आका मैं वादा करता हूँ जिस मजलूम की मजलूमियत पर आप रो रहे हैं मुझे भी दिखाएं, मैं जलाल ही दिखाऊंगा। शरीया मौला हुसैन ने अंगुश्त बुलंद की। अभी मंजर क्या था, दारुल अमारा की छत थी, एक मजलूम था, हाथ पीछे बांधे हुए थे और जुल्फों में रेत थी, लब कटे हुए थे और जल्लाद तलवार लेके खड़ा था। अभी मौला ने ये मंजर देखा था कि गाजी रोए और रोकर कहने लगे आका ये कौन मजलूम है जो मजलूमों की तरह मारा जा रहा है। अदादारों अगले जुमले सुनना। अब मौला हुसैन रोए और रोकर कहने लगे गाजी पहचान तेरी बहन बेवा होने लगी है, ये रुकैया का सरदार है, ये मुस्लिम बेनकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आबाद रहो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौला मौला मुझे एक हमले की इजाजत दो। मौला आप इमाम हो, यकीन करो शरी तारीख में पढ़ा है मौला गाजी ऐसे रोने लगे जैसे कोई बच्चा रोता है और रोकर कहने लगे मौला हुसैन मुझे एक दफा कूफा भेजो, मैं देखूं गाजी के होते हुए ये मुस्लिम को कैसे मार रहे हैं। अज़ादारों ये मंजर था कि मौला हुसैन ने इजाजत नहीं दी। अब गाजी ने हाथ जोड़े और रोकर कहने लगे मौला मैं वादा करता हूँ मुझे कूफा भेजो, मैं जंग नहीं करूंगा। दारुल अमारा की छत ऊंची है, मुस्लिम का सर नीचे आएगा, मैं अपनी गोद में ले आऊंगा। अदादारों ये जुमले थे। मौला हुसैन ने कहा लाली तूने दारुल अमारा की छत पर देखा है, नीचे तो देखो। अब जब नीचे देखा एक काले बुर्के वाली बीबी थी जो कि कह रही थी ओ मेरी औलाद को कहां कहां मारोगे, इसका सर मुझे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अजरकुमुल्लाह आबाद रहो जो है उतनी है कि किसी गम में न रहो। बस शरी तलवार का चलना था कि जनाब मुस्लिम में नकील सर पाक बीबी की गोद में आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शरी ये मंजर था। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, सारे गैरतमंद अज़ादार बैठे यार कोई परदेश में मौजूद हो और मर जाए तो बंदे कहते हैं चार पाई लेके आओ, यार कोई चादर लेके आओ, लाश पर डालते हैं। कसम है रब्बे अकबर की कूफे वाले इतने बेगैरत लोग थे कि मुस्लिम का लाशा चार पाई पर नहीं डाला बल्कि न चार पाई मंगाई न चादर